السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جناب اس وقت ہم موجود ہیں ماشاءاللہ ایک ایسی پرسنالٹی، ایسی شخصیت کے پاس جو کہ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں جناب اہل تشیع کی طرف سے۔ اور جناب جو ہے نا، آپ سب کو پتہ تو ہے 18 ذی الحجۃ الحرام کو ایک عید منائی جاتی ہے جس کو عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ کیا عید ہوتی ہے، وہ اہل تشیع کیوں مناتے ہیں، کس مقصد کے تحت مناتے ہیں، اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عید غدیر منانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ آج مکمل طور پر میرے ساتھ جناب ماشاءاللہ اس وقت مولانا صاحب موجود ہیں۔ آج وہ جناب اہل تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے مکمل طور پر ڈیٹیل بتائیں گے۔ جتنے بھی جناب دیکھنے والے تمام ویورز سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے گا اور آپ کو مکمل طور پر یہ ویڈیو سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں؟ اللہ پاک کے احسان آپ سنیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا، اور اب ہم جناب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں بغیر کسی ویٹ کیے۔ سب سے پہلے بتائیے کہ عید غدیر ہوتی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی قبلہ، آپ کا سوال کہ عید غدیر ہے کیا؟ صحیح ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ غدیر ہے کیا۔ غدیر ایک عربی زبان کا لفظ ہے صحیح ہے، جس کا مطلب ہے تالاب، یعنی کہ جہاں پانی جمع ہو جائے، چاہے بارش کا ہو یا سیلاب کا ہو، صحیح بات، تو اس حوض کو کہتے ہیں، تالاب کو کہتے ہیں غدیر۔ صحیح ہے۔ اب یہ غدیر خم کیا ہے؟ غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ایسا مقام ہے اچھا، جہاں سے مختلف شہروں کا ایک راستہ نکلتا تھا۔ صحیح ہے، یعنی کہ اگر کوئی عراق والے ملک سے آتا ہے تو اس غدیر خم کے میدان سے راستے نکلتے تھے، وہ اپنے راستے کو چلا جاتا، کوئی شام سے آتا، کوئی جہاں سے بھی آتا۔ صحیح بات، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ جب حج سے واپسی کے موقع پر سارے اصحاب اپنے اپنے شہروں کو جا رہے تھے، اس مقام سے انہوں نے جدا ہونا تھا۔ اچھا، جب اس مقام پہ پہنچے، کوئی عراق کی طرف چلا گیا، کوئی شام کی طرف، تو جبرائیل امین جناب رسول خدا کے پاس ایک وحی لے کے آئے۔ صحیح بات، سورہ مائدہ کی آیت ہے 67 نمبر، تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ صحیح بات، اے رسول پہنچا دو وہ پیغام جو تجھ کو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ فعل سل انجام نہ دیا، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے رسالت کو کام نہیں کیا۔ صحیح بات ہے، یعنی کہ اللہ نے کہا میرا حبیب وہ پہنچا دے وہ پیغام جو تجھ کو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا خاص پیغام ہے نا جو اللہ حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو پہنچانے کا۔ صحیح بات ہے۔ تو جناب رسول خدا نے دیکھا اب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہیں، تو جناب رسول خدا نے جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب کمبر کو حکم دیا کہ ان سب کو واپس بلاؤ۔ حی علی خیر العمل کی صدا دے کے سب کو واپس بلایا۔ سارے اصحاب جمع ہوئے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ سارے احکام تو ہو گئے، صحیح بات، اب کس چیز کے لیے جناب رسول خدا ہمیں بلا رہے ہیں؟ تو اس خم کے میدان میں سب اصحاب کو اکٹھا کیا۔ صحیح بات، تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ممبر بنایا جائے۔ صحابہ نے بولا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں جس سے ہم ممبر بنائیں۔ صحیح بات، تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ان اونٹوں سے پلانوں کو اتارو اور ممبر بناؤ۔ واہ، اصحاب نے جناب رسول خدا کا یہ کہنا مانا، اونٹوں سے پلان اتارے اور ممبر بنایا۔ صحیح بات، ایک وسیع خطبہ دیا جناب رسول خدا نے۔ خطبہ دینے کے بعد اپنے جتنے بھی اصحاب تھے، کم از کم روایات میں جو ہے اہل سنت کتب میں، اہل تشیع کتب میں، کہ 1.25 لاکھ کم از کم اس وقت حاجی تھے اچھا، جنہوں نے حج کیا جناب رسول خدا کے ساتھ۔ صحیح بات، تو 1.25 لاکھ انبیاء سے، صحابہ کرام سے جناب رسول خدا نے فرمایا کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو اس وقت جناب رسول خدا نے اپنے بھائی علی کا ہاتھ پکڑا، اس کو بلند کیا۔ روایات میں ہے کہ اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی یہ سفیدی ظاہر ہوئی۔ تو اس وقت اپنے بھائی کا ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک بات یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ لوگوں نے مولا کا مطلب دوست لیا، حالانکہ مولا کا مطلب دوست نہیں ہے۔ مسند امام احمد حنبل میں ہے، فضائل الصحابہ میں، المعجم الکبیر میں ہے، یعنی کہ بہت ساری ایسی احادیث کی کتب اہل سنت کی جن میں مولا کا مطلب آقا ہے، مولا کا مطلب رہبر ہے، مولا کا مطلب پیشوا ہے۔ یعنی کہ جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں سردار اس کا علی سردار، جس کا میں رہبر اس کا علی رہبر۔ تو یہ اعلان ہوا، تو اس وقت پھر دوسری آیت لے کے جبرائیل نازل ہوا اسی خم کے میدان میں کہ اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم،
वअतममत अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सही बात। यानी कि जिस चीज़ ने अल्लाह के दीन को मुकम्मल किया वो विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इसलिए इस रोज़ को शियान अली, शियान हैदर करार, शियान अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ईद के तौर पर मनाते हैं, और फ़कत अपनी तरफ से नहीं मनाते। ये मासूमीन ने अहादीस में जिक्र किया। सही बात है। मासूम फरमाते हम अहले बैत की, हमारे मासूम सादिक आले मोहम्मद फरमाते हम अहले बैत की सबसे बड़ी ईद ईद गदीर है। सही बात। क्योंकि देखिए रमज़ान ख़त्म होता है तो अल्लाह की तरफ से ईद उल फित्र का तोहफ़ा है। सुन्नत इब्राहीमी पे 10 ज़िलहज्जा को ईद। अब जनाब आदम से लेके जनाब ख़ातम तक, मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अम्बिया की मेहनत जिस दिन तकमील हुई उस दिन को ईद गदीर कहा जाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो नाज़रीन किराम, ईद गदीर की आपने हकीकत जानी। अच्छा, ईद गदीर क्या हदीस पाक से साबित है, मुकम्मल तौर पर आया है कि ये ईद मनाओ आप? ये देखें किबला, ईद, पहले लफ्ज़ ईद को देखें कि ईद है क्या। ईद भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुशी। अब जनाब रसूल खुदा की मुतवातिर अहादीस हैं बहुत सारी अहले सुन्नत की कुतुबों में, अहले तशी हज़रात की कुतुब में, कि जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। तो अब जुमा ये ईद क्या है? सही बात। यानी कि ईद मतलब खुशी का दिन है मुसलमानों के लिए। अब ईद का मतलब पहले जान, उसके बाद सारे इंशाल्लाह जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब जनाब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन वो गुनाह नहीं करता। सही है। यानी ईद से आप जो है ना माना मफहूम लेते हैं, माना मफहूम लेते हैं। हकीकतन ईद वो होती है जिसमें नमाज पढ़ी जाती है, तो वो आप उस दिन नमाज भी पढ़ते हैं। किबला ये देखें इसके इस रोज़ के, क्योंकि फजीलत वाला दिन है, खुदा ने अपने दीन को कामिल किया, मौला की विलायत का ऐलान हुआ, तो ये कोई छोटा दिन नहीं है। इसके बारे में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे अमाल बताए हैं। इस रोज़ की नमाज भी है, इस रोज़ का रोज़ा भी है। मासूम फरमाते कि जो शख्स इस दिन का, योम गदीर के दिन का, ईद गदीर के दिन का एक रोज़ा रखता है तो गोया वो 60 साल के जो उसने गुनाह किया तो उसका कफारा है। अच्छा, ये बताएं कि अब मसलक अहले तशय्युअ जो है ना, ईद गदीर के दिन क्या क्या काम करते हैं? ईद गदीर के दिन ये मासूमीन, क्योंकि हमने सबको जो मासूमीन फरमाते हैं हम वही करते हैं। सही बात। तो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़े ईद गदीर के दिन मस्कीनों को खाना खिलाओ। सही बात। घर में सुफरा लगाओ। सही बात। मुस्कुराने का दिन है क्योंकि अल्लाह के दीन इस दिन मुकम्मल हुआ और मौला की विलायत का ऐलान हुआ। सही बात। तो ये फ़कत शियान हैदर करार के लिए मुख्तस ना करें इस रोज़े यानी कि गदीर को, ये पूरे आलम इस्लाम के, अगर अमीर उल मोमिनीन अगर शियों के पहले इमाम है तो अहले सुन्नत के चौथे खलीफा भी तो हैं। सही बात। तो फ़कत ये शियान हैदर करार को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि अहले सुन्नत भाइयों को भी खुश होना चाहिए कि हमारे चौथे खलीफा की विलायत का ऐलान। नहीं, आप हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम उनको चौथा खलीफा मानते हैं या पहला? ये देखें जी, हमारे यहाँ इमामत है। अच्छा, अगर जनाब रसूल खुदा के बाद कोई जानशीन खलीफा है तो मसलक अहले तशी उसको अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ात से मानते हैं। क्योंकि मसलक अहले सुन्नत जितने भी दीगर अदियान हैं उनका एक अपना अपना, हर किसी का अपना नज़रिया है। लेकिन मसलक अहले बैत में, फ़िक़्ह जाफ़रिया में, बाद अज़ रसूल जो बगैर किसी वास्ते के खलीफा हैं वो अमीर अल-मोमिनीन अली के साथ। अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहहु। नाज़रीन किराम, इसके अलावा जनाब आप जो है ना थोड़ा सा मिसाल के तौर इसके हट कर एक अहले तशी जो है ना, ये फ़िरका कब से शुरू हुआ और अहले तशी क्यों नाम दिया गया है? थोड़ा सा अहले तशी शिया का मतलब है किबला पैरोकार गरोह। अच्छा, और कुरान की आयत भी है वइन्ना मिन शियतिल इब्राहीम। सही है। तो शिया का मतलब गरोह है। गरोह, अब हम शिया ने अली अपने आप को कहते हैं, यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले। अब अगर इजाज़त दे तो एक जुमला आपकी समाअतों के हवाले। किबला मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक हमारे बहुत बड़े खतीब थे उनका ये जुमला है। वो कहते हैं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शिया नहीं और मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई सुन्नी नहीं। क्योंकि सुन्नी वो होता है जो रसूल की सीरत पे अमल करे। तो मौला कायनात से कोई बढ़कर कोई ऐसा शख्स ही नहीं कि जो मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत पे अमल करे। सही बात। और शिया का मतलब है मुहिब, मददगार, पेरू। तो जनाब रसूल खुदा से कोई ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अली अलैहिस्सलाम से नहीं है। और शिया जो फ़िरका कब से बना है, किस दौर से? ये देखें, ये मसलक जो शिया एक नाम दिया गया, ये अमीर अल मोमिनीन के दौर में ही था कि ये एक ख़ास लोगों ने हमारे वो लगा दिया टाइटल कि ये अली के चाहने वाले, इसलिए ये शिया हैं। नहीं तो
अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मज़हब है वो मज़हब अहले बैत है, लेकिन शिया इसलिए नाम दिया गया क्योंकि कुछ लोग उन लोगों को नापसंद करते थे जो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के साथ मोहब्बत रखते थे, उनकी पैरवी करते थे, उनकी अताअत करते थे, तो इस वजह से उनको शिया कहने लग गया। और वैसे भी अगर मज़हब अहले बैत को फ़िक़्ह जाफ़रिया को शिया का नाम दिया जाए तो इससे कोई कबाहत नहीं, क्योंकि कुरान में जनाब इब्राहीम के लिए भी लफ्ज़ शिया का इस्तेमाल हुआ। सही बात। अच्छा, और एक और लफ्ज़ मिसाल के तौर पर मशहूर है कि एक अहले तशय्युअ की जो कलमा है ना और अहले सुन्नत की कलमा और अहले तशय्युअ की कलमा के अंदर डिफरेंट है, मतलब फ़र्क है, तो उसमें कौन सा लफ्ज़ का फ़र्क है? आपका पहला कलमा मिसाल के तौर पर सुना है ना, ताकि नाज़रीन सुने, और अक्सर मैंने सुना है कि उनकी कलमा चेंज होती है, तो पहला कलमा कौन सा है आपकी? पहले तो ये देखें कि कलमा हमने कुरान से लिया जी, कलमा कुरान से लिया, यानी कि आप फरमाएंगे, मैंने सवाल किया कि आपने कलमा कुरान से लिया, तो आपका ये क्या जवाब होगा इसके ऊपर? सही बात, कुरान से लिया। अब हमने तौहीद की आयत को देखा तो हमने पढ़ा ला इलाहा, क्योंकि कुरान में कहीं भी सारा इकट्ठा नहीं लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान में इकट्ठा नहीं लिखा हुआ। हमने तौहीद की आयत को देखा, हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हमने जनाब रसूल खुदा की नबूवत और रिसालत की आयत को देखा, हमने पढ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब हमने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत की आयत को देखा, तब हमने पढ़ा अलीजुन वलीयुल्लाह। इसी तरह मैंने वो इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन, यानी कि कुरान की आयत है कि एक वली अल्लाह है, सही है, एक वली उसका रसूल है, और तीसरा वली वो जो हालत रकू में ज़कात देता है। इसमें अहले सुन्नत बरादरान की बहुत सारी तफसीर भरी पड़ी हैं कि जो इस आयत की तफसीर करते हैं कि जनाब रसूल खुदा ने हालत रकू में एक जब साइल ने सदा दी कि मैं भूखा हूँ प्यासा मुझे कुछ दें, तो मौला ने अपनी अंगूठी ज़कात में दे दी, तब ये आयत नाजिल हुई। तो एक विलायत का मनसब देखे, इसकी अहमियत देखे, विलायत है क्या? अल्लाह ने कहीं भी पूरे कुरान में अपने आप को नबी नहीं कहा, सही बात। पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने आप को रसूल नहीं कहा, लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने आप को वली कह दिया। अब इसका मतलब देखे विलायत का मनसब कितनी अहमियत का हमें। सही है, सही है, सही है, सही। जी मौला आपको सलामत रखे। तो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त जितने भी फ़िरका हैं, देवबंद देख लें, अहले हदीस देख लें, बरेलवी हज़रात देख लें, अहले सुन्नत के लोग जितने भी है ना, तो अहले तशय्युअ को जो है ना इस वक्त मतलब जो है ना वो काफिर मानते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखें, जब बंदा कोई अपने आप को कहता है कि जी हम रसूल के उम्मती हैं, क्योंकि अहले सुन्नत कहते हैं कि हम रसूल की सीरत पर अमल करने वाले, सुन्नत यानी रसूलुल्लाह की सीरत, उनकी सुन्नत, तो अगर वो अपने आप को ये मानते हैं तो फिर उनको ये हक नहीं बनता कि वो किसी को काफिर कहें, क्योंकि फ़िक़्ह हनफिया में भी मसाले के बहुत सारे, इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले, कोई मालिकी हैं, कोई शाफ़ी हैं, कोई हनफी हैं, तो जब इनके भी आपस में इतने इख्तलाफात हैं तो ये दूसरे को इनको हक किसने दे दिया किसी को काफिर बनाए या किसी को मोमिन बनाए, किसी को काफिर बनाए? क्योंकि ऐसे काम होंगे जिसकी वजह से आप पर फतवा लग जाता है। ऐसे काम है, ये सिर्फ ये तो कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग शामिल कर देते हैं दीन में, वो फ़कत वो देखें आप हर मसलक में ऐसे। अच्छा, मतलब हर मसलक वाला दूसरे को जो है अच्छा नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सही बात है, या आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। कैसे ख़त्म होगी? जनाब रसूल खुदा ने अभी देखें हुज्जतुल विदा जो आखिरी खुतबा दिया उसमें क्या बयान फरमाया था, वाकई बात, किसी गोरे को किसी काले पर, कोई फकीर अरबी को अजमी पर, यानी कि देखे जात पात वाला सिस्टम तो जनाब रसूल खुदा ने बनाया ही नहीं है ना, वो तो इसके माने थे, यानी कि मना करने वाले हैं। तो जब हम अपने आप को ये लगाते हैं कि हम अहले सुन्नत उनकी सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, तो हमारा हक नहीं बनता कि उनकी तालीमात से हटकर अपनी यानी कि राय दें। सही बात है। आपने फिर अहले गदीर के मौके पर जो है ईद गदीर के मौके पर क्या प्रोग्राम किया हुआ है? इंशाअल्लाह बेहक के जनाब सैयदा अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो इंशाल्लाह सुफरा बिछाएंगे, ताम दस्तरखान बिछाएंगे, इंशाल्लाह ज़दार आएंगे, ज़वार आएंगे, मुसलमान जितने भी है वो आएंगे, खाना खाएंगे, इंशाल्लाह सबीलें होंगी। उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदहसराई बयान होगी, जनाब रसूल खुदा की मदहसराई होगी इंशाल्लाह हमारी इस बारगाह में, इमाम बारगाह कसरे बतूल में प्रोग्राम है, जश्न है, जिसमें अल्लाह की तौहीद, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मौला की विलायत के ऊपर इंशाल्लाह बयान होगा, गुफ्तगू की। अस्सलाम सलामत। जी नाज़रीन किराम, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है कि अच्छी लगे, जो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। अपने मेज़बान मोहम्मद जुनैद को आज की इस बहुत बड़ी खूबसूरत वीडियो के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह।